Hello students. So today we will learn about the classification of matter. Okay. So basically in last lecture, let me revise it. We have just classified our matter. There are two types. One was like physical classification. Okay. And the another one was like chemical classification. Okay. So basically in that point of view, we have just classify our matter in a three portion. Okay. And the first one is solid, liquid, and gas as a mainly. But nowadays, the recent research shows that we have more than it, like plasma, and the another one is Bose-Einstein condenser. You will learn these two matter in a 12th science. Okay, very short explanation is that हम मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक फिजिकल क्लासिफिकेशन दे सकते हैं और एक केमिकल क्लासिफिकेशन दे सकते हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आएगा, जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन जो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से दो सब्सटेंस आते हैं. तो उसके अंदर मेनली दो चीज़ आएगी. एक आएगा आपका मिक्सचर एंड अनदर थिंग इज दैट प्योर सब्सटेंस. ओके, so here further we can classify our mixture into two portions. I can say it's one is homogeneous mixture and the another one is heterogeneous mixture. Okay, so here even there are two types of mixture: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now let me consider in a pure substance. I can classify my pure substance into two portions, and the one is element and the another one is compound. Okay, one is element and the another one is, like I can say, compound. Okay, okay, so now if I can see this, okay, so now I can classify further this element into two portions. I can say three portions: one, two, and three. That one is metal, non-metal, metal, non-metal, and the third one is that semi-metal. Okay, I will classify my elements into these three portions. Okay, so basically this one is the classification of matter. In last lecture we have seen about the solid, liquid, and gas. Okay, today in this lecture we will learn about the mixture and pure substances. Okay, I think mixture will be completed in this lecture. Okay, so now let me start with the another thing, and that one is mixture. I hope you all students are ready. Okay, let me take a one new slide. Okay, so now listen. Let's consider what do you mean by mixture and classify it. Question कुछ ऐसे आ सकता है. What do you mean by mixture? Give its classification. Okay, so what I can say, what do you mean by mixture? So I can say it's a mixture contain particles. Your mixture contains particles of two or more substance. Like in a daily life, we use mixtures only. Suppose early morning, if you are drinking tea, so tea is like one kind of mixture only. Okay, if you are
taking ice cream, that ice cream is also one kind of mixture only. Okay, suppose any alloy is there, so that one is mixture. Okay, if you are putting salt water, if you are putting salt into that water, so that one is a mixture. If you are putting sand into that water, so even that one is a mixture. Okay, so I can say mixture contains particles of two or more substances, like tea. Examples are tea, ice cream, or salt water, and sand dipped into that water. Okay, so now what I am saying, in a mixture, if I am considering about the mixture, so the ratio of particles, okay, इसके अंदर जो particles रहते हैं, उस particles का ratio of component is not definite. Means अगर आपके पास, मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास H2O है, अब आप इसमें NaCl डालते हो, 1 स्पून NaCl डालो, 2 स्पून NaCl डालो, कि 3 स्पून NaCl डालो, बच्चों रहेगा तो ये मिक्सचर ही है, तो यहाँ पे कोई डिफाइनाइट प्रोपोर्शन नहीं है. एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट if you are preparing mixture, so the component of mixture, the particles of mixture, or the component of mixture will retain their properties. हम ये कहना चाहते हैं, component of mixture will retain their properties. अब बात ये बन रही है कि हम यहाँ पे H2O में NaCl डाल रहे हैं, तो आपको NaCl कैसा लगेगा? सॉल्टी टेस्ट आएगा ना उसका. तब अगर आप पानी के अंदर NaCl मिक्स करते हो, तब भी NaCl जो अपना सॉल्टी नेचर है वो संभाल के रखेगा. मीन्स कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है, जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को इंटैक्ट करके रखते हैं. वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करके रखते हैं बच्चों? इंटैक्ट करके रखते हैं. आ रही है पूरी बात समझ में? यस और नो? दूसरी मैं एक बात बताऊं तो, दूसरी एक मैं अच्छे से बात बता दूं. यहाँ पे मिक्सचर की बात कर रहे थे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर? सो इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर कंपोनेंट्स. एग्जांपल्स देने हैं, फिर आपको ये समझाना है यहाँ पे जो रेशियो होता है कंपोनेंट का, वो डिफाइनाइट नहीं है. आप H2O में 1 चम्मच NaCl डालो, 2 चम्मच डालो कि 3 चम्मच, वो तो क्या रहेगा बच्चों? वो तो आपका मिक्सचर ही रहने वाला है. समझ रहे हो पूरी बात मेरी? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपोनेंट जो होते हैं, जो मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस है, वो अपने खुद के जो प्रॉपर्टी है वो एनहांस करके रखते हैं, वो रिटेन करके रखते हैं. जैसे मैं बात करूँ NaCl की, तो NaCl कैसा होता है? सॉल्टी इन नेचर. तो अब H2O में अगर आप क्या डाल रहे हो? NaCl डालते हो, तो वो पूरा का पूरा मिक्सचर कैसा हो जाएगा? सॉल्टी. दूसरी अगर मैं समझाऊँ तो, कि शुगर का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है. अगर आप उसको पानी में डालो, अगर शुगर को आप पानी में डालो, फिर भी वो अपना स्वीट नेचर जो है वो इंटैक्ट करते हैं. समझ रहे हो बात आप मेरी? तो ये जो है वो क्या है बच्चों? मिक्सचर है. तो ये है मिक्सचर. अब मिक्सचर को हमने 2 चीजों में क्लासिफाई किया. हमने मिक्सचर को 2 पोर्शन में क्लासिफाई किया है, होमोजीनियस मिक्सचर और एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक कौन सा होता है बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास जो है वो मिक्सचर का जो है टॉपिक वो क्लियर होना चाहिए. अगर आप इसको रिपीट करना चाहते हो,
देन व्हाट यू कैन जस्ट डू, अब इसको रिवाइज कर लो इस वीडियो को, समझ रहे हो बात? यस और नो? चलो अभी फिलहाल हम इसको जो है वो सेव कर लेते हैं, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिक्सचर में दो चीज होती है। मिक्सचर जो है वो दो टाइप का होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक कैसा होता है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो इन दोनों में दिक्कत क्या है, चलो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर? तो यहाँ पे जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? homogeneous mixture. So the component of mixture will completely mix with each other. ओके अगर दूसरे शब्दों में कहे तो ये अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, और दूसरे शब्दों में कहे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, particles will uniformly distributed throughout the bulk. मीन्स ये बल्क में थ्रू आउट जो है वो सभी जगह पे अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं बच्चों, घुल मिल जाते हैं। समझ रहे हो बात? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे H2O है और प्लस इसमें NaCl डालो, H2O प्लस NaCl, यहाँ पे NaCl जो है वो पूरी जगह पे आपको दिखेगा नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन NaCl आपको दिखेगा नहीं। जैसे मैं आपको दो ग्लास दे रहा हूँ, एक ग्लास ए है और एक ग्लास बी है, मैं दोनों में वाटर है और एक में वाटर है और एक में वाटर प्लस सॉल्ट है। सपोज आपके पास ये दो ग्लास है, एक में वाटर है और एक में वाटर प्लस सॉल्ट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा जो है उसमें वाटर प्लस सॉल्ट है? तो देखने से आपको नहीं पता चल पाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई आप इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे। कंपोनेंट में जो है वो आप देख भी नहीं पाओगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है वहाँ पे मिक्स हुआ है। हाँ अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं जो है इसको टेस्ट करके बता सकता हूँ, हाँ टेस्ट करके आप बता सकते हो, क्योंकि नेक्ड आई से हम होमोजीनियस कंपाउंड जो है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसको हम लोग नेक्ड आई से देख नहीं सकते। वहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उस मिक्सचर को कि इसमें ये NaCl है और यहाँ पे ये कौन है भाई, वाटर है, ऐसे। लेकिन हाँ टेस्ट से पता चलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे NaCl वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? हर जगह पे वो इक्वल अमाउंट में है, यूनिफॉर्मली है। क्योंकि ये तो नहीं होता है कि अगर आप कोई ये पानी टेस्ट करोगे तो ऊपर पानी थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी होगा, नीचे कम होगा, या फिर नीचे ज़्यादा सॉल्टी है ऊपर कम सॉल्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। सो हिट्रोजीनियस में इसका क्या करना है, पूरा अपोजिट टाइप से लिखना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, यही इन हिट्रोजीनियस सिस्टम द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, composition is not uniform throughout, ठीक है? And sometimes different components different components
are visible. Sometimes different components are visible. For example, a mixture of, I can say, H2O plus sand. यहाँ पे सैंड जो है यहाँ पे ज्यादा होगी, ऊपर नहीं होगी, तो ये इजीली हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, इजीली हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं, ये H2O प्लस क्या है बच्चों, सैंड है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है बच्चों, यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों। ओके, तो ये सभी हम किसके अंदर देख रहे थे बच्चों, अभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमने देखा। चलो और भी हम लोग जो है वो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि we can separate component of mixture. We can separate component of mixture. And for that we can use physical method. तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग फिजिकल मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, और कौन सी मेथड है फिजिकल मेथड, सच एज सिंपल हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हैंड पिकिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको हाथ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे जैसे पानी में अगर बहुत बड़ी सैंड है तो हम लोग सैंड को जैसे हाथ से हैंड पिकिंग से भी निकाल सकते हैं। या फिर आप समझ सकते हो कि गेहूं में जब कंकर होते हैं मिक्सचर में, तो हम लोग गेहूं से कंकर को कैसे निकालते हैं, हैंड पिकिंग से। समझ रहे हो बात, सो हैंड पिकिंग। द नेक्स्ट वन इज द हैंड पिकिंग। दूसरा जो है वो क्या है बताओ, दूसरा कौन सा आएगा वो बताओ चलो बच्चों फटाफट से। तो दूसरा जो है वो आएगा फिल्ट्रेशन मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है बच्चों, फिल्ट्रेशन मेथड है। तीसरा मेथड जो है वो आ जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। ओके, एंड द फोर्थ वन इज डिस्टिलेशन। ओके, अगर आप समझना चाहते हो फिल्ट्रेशन, तो आप सपोज सुबह की टी पीते हो, चाय जब पीते हैं तो चाय को हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है सपोज ये फनेल है, हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आप ऐसे फिल्टर पेपर रख दो, यहाँ पे आप क्या रख दो, ये फिल्टर पेपर। अब आप थोड़ा सा समझो कि जिसकी साइज बहुत कम होती होगी वो यहाँ से निकल जाएगा। सपोज सैंड प्लस वाटर है, तो यहाँ पे कलेक्ट कौन हो जाएगा बच्चों, वाटर इजीली कलेक्ट हो जाएगा और सैंड मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रह जाएंगे। सो वी कैन सेपरेट इट। द नेक्स्ट थिंग इज क्रिस्टलाइजेशन। वी विल सी इन स्टैंडर्ड 12 इजीली, वी विल सी इट। ओके, एंड द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। डिस्टिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे कैसा फ्लास्क होता है, ठीक है, और फिर अच्छे से मैं आपको समझने की ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझना बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे जो है, हम लोग यहाँ पे
दो चीज रख रहे हैं, ए प्लस बी, इसको मुझे सेपरेट करना है। ए जो है वो लो टेम्परेचर पे बॉयल होता है और बी जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है। तो मैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यहाँ से सपोज हम बर्नर रखते हैं, तो जो यहाँ पे ए है, ए की फ्यूम्स बाहर आने लगेगी बच्चों। ए की फ्यूम्स जो है वो सीधी क्या होने लगेगी, बाहर आने लगेगी। और फिर यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन है, ये पिघल जाएगा और लास्ट में यहाँ पे आपको कौन है, बी मिल जाएगा जो उड़ रहा है। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका कम है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो उड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो बी यहाँ पे रहेगा और ए जो है वो यहीं पे रहेगा। ए और बी को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन से। यहाँ पे वाटर फ्लो जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे वाटर फ्लो जो है, जिससे क्या हो जाए, वाटर फ्लो से क्या होता है, मीन्स आपको यही समझना है। यहाँ पे दो थे, ए और बी, बी जो है वो इजीली इवापोरेट हो जाता है, मीन्स उड़ जाता है। सपोज पानी और पेट्रोल है, तो पानी है और ये कौन है बच्चों, पेट्रोल है। तो मुझे पता है पेट्रोल इजीली उड़ेगा, तो मैं जब इसको हीट करूंगा तो पेट्रोल उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, पानी यहीं पे रह जाएगा। तो वो होता है डिस्टिलेशन। तो मैं आपको जस्ट समझाना यही चाहता हूँ बच्चों कब से, कि वी कैन सेपरेट आवर कंपोनेंट और वी कैन सेपरेट आवर मिक्सचर। ओके, कौन सी मेथड होती है बच्चों, यहाँ पे फिजिकल मेथड है। ओके, उसमें हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, ये चीज आती है। ओके, समझ रहे हो बात धीरे धीरे। तो ये जो है वो मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार समझा दूं, वो हमने अभी तक क्या पढ़ा, वो हमने पहले तो ये पढ़ा कि ये जो है वो सभी क्या है, पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन है। इसमें हम आज देखने वाले थे भाई, इसमें हम आज कौन देखने वाले थे, मिक्सचर देखने वाले थे। हमने अच्छे से मिक्सचर को देखा बच्चों। हमने किसको देखा बच्चों, मिक्सचर के बारे में देखा। तो देयर आर टू टाइप्स, one is homogeneous mixture and the another one is heterogeneous mixture। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्ट प्लस कौन आ गया बच्चों, H2O। हेट्रोजीनियस, सॉल्ट प्लस सैंड। इनको हम क्या कहते हैं, ये विजिबल नहीं होते हैं, कई बार ये विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सपोज आप देख सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहले मिक्सचर में दो से ज़्यादा कंपाउंड एक दूसरे में मिक्स होते हैं। दूसरा, उनका जो रेशियो होता है वो डिफाइनाइट नहीं होता है। तीसरा, हर एक जो कंपोनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी इंटैक्ट करके रखता है, संभाल के रखता है बच्चों। समझ रहे हो बात, हर कोई कंपोनेंट अपना जो है प्रॉपर्टी, उसको क्या कहता है बच्चों, संभाल के रखता है। फिर हमने देखा होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। आप देख ही सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है कंप्लीटली मिक्स विथ अदर होते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। समझ रहे हो बात। फिर अगर हम लोग देखें तो इन मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन सेपरेट दिस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर with the help of hand picking method, filtration, crystallization and distillation। ये सभी हम 12th में अच्छे से देखने वाले। तो यहाँ तक का हमने जो है वो पॉइंट बहुत ही बढ़िया सा देखा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करूँ तो अब हम देखने वाले हैं, अब हम जिसके बारे में देखने वाले हैं वो है प्योर सब्सटेंस बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस। हमें तो पता ही है वो मिक्सचर से पूरे ही कैसे होते हैं, डिफरेंट। यहाँ पे क्या होता है, टू एंड मोर कंपाउंड, more compounds will combine
together in a definite ratio. So that one is known as a pure substance. Okay, they will have fixed composition. Okay, फिक्स कंपोजिशन. जैसे आप कॉपर लेते हो, फिर आप कॉपर कहीं से भी लो, अपने गांव से लेके आओ कि मेरे गांव से लेके आओ, कॉपर के जो एलिमेंट हो वो फिक्स ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं. फिर प्योर सब्सटेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो कॉपर है, जिंक है, Ag, Au, दे ऑल आर गुड एलिमेंट्स. ओके, फिर कई बार क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स H2 प्लस O2 हर बार फिक्स रेशियो में जुड़ के अगर ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट वन इज कंपाउंड. ओके, दूसरा अगर मैं बात करूं C6H12O6 की, तो यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड. रेशियो ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड मीन्स कार्बन जेम हाइड्रोजन जेम ऑक्सीजन 1 जेम 2 जेम 1 देख सकते हो. अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कार्बन जेम हाइड्रोजन जेम ऑक्सीजन 6 जेम 12 जेम 6 1 जेम 2 जेम 1. तो आप कहीं से भी ग्लूकोज का मोलिक्यूल लेके आओ, कहीं से भी आप ग्लूकोज का, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स हुए हैं, लेकिन ये डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं और केमिकली कंबाइंड है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं. तब बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तब जो है हम इसको अच्छी तरह से क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं. दैट्स ऑल, ये बात बनती है. ओके, इज इट क्लियर, यस और नो? ये वाली बात यहाँ पे बनेगी. तो ये जो होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस. ये जो है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस है. ओके, प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग दो तरीके से, प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग दो चीज में बांट सकते हैं. बच्चों अच्छे से देखना कौन सी दो चीज है वो. ओके सर, एक बार रिवाइज करो क्या होता है प्योर सब्सटेंस. उसमें कंपोजिशन फिक्स होता है. प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन कैसा होता है, फिक्स, डिफाइनाइट रेशियो होता है. और उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो आप हमें बता रहे थे, इसका हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट एंड एलिमेंट, और दूसरा क्या आता है, एलिमेंट एंड दूसरा क्या आएगा, कंपाउंड. समझ रहे हो आप बात अच्छे से, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो चलो आप मुझे बताओ एलिमेंट में क्या आता होगा, एलिमेंट में क्या आता है. सो एलिमेंट में हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ element consist of one type of atom. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सभी क्या होते हैं भाई, एटम्स होते हैं. ओके, और ये जो होते हैं आपका एलिमेंट कंटेन्स एटम और मॉलिक्यूल. जैसे मैं बात बताऊं, अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, सपोज एक कॉपर है, तो ये सभी सेम एलिमेंट है. एक एलिमेंट के सभी जो एटम है वो सेम टाइप की होते हैं. उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी कैसी होती है, सेम. इन सब की प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम. लेकिन हाँ, अगर आप दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हो, एक कॉपर है और एक क्या है बच्चों, गोल्ड है, आप डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हो, तब क्या है, ये गोल्ड है.
तो इन सभी एलिमेंट के अंदर के जो एटम्स है वो सभी सेम है, लेकिन हाँ जो कॉपर के एलिमेंट है और जो ये गोल्ड के एलिमेंट है दे आर डिफरेंट। ये दोनों कैसे रहते हैं बच्चों, अच्छे से देखो, ये दोनों सेम नहीं है। कॉपर के एलिमेंट जैसे है वैसे EU के नहीं है, और इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम है। इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, एटम। लेकिन मैं डाइहाइड्रोजन गैस लूं, अगर मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ डाइहाइड्रोजन, तो उसमें सभी एटम सेम है, देखो ऐसे। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाया हुआ है, H2। तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई H + H इट गिव्स यू H2। और दूसरा मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एलिमेंट के एग्जांपल्स जो है H + H क्या हो रहा है बच्चों, H2। Cl + Cl, ऐसे तो लिखना मुश्किल है, ये Cl2, ये एलिमेंट है H2Cl2। क्योंकि अगर मैं गैस ले रहा हूँ H2 का, तो उनके अंदर सभी जो एटम्स है वो सभी के सभी एटम्स कौन से है, किसके है बच्चों, हाइड्रोजन के ही है। समझनी चाहिए बात आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो है वो गुड एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम बात करें कंपाउंड की। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड, ओके। क्या आप मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ आपको जो है वो ये बात समझ में आ गई होगी। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम्स ही रहते हैं। जिसमें क्या रहते हैं बच्चों, वन टाइप्स ऑफ एटम ही रहते, एटम्स ही रहते हैं, जैसे कि सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। समझ रहे हो बात। और दूसरा, ये जो दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, तो उन दोनों के एटम्स कैसे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तरह एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे एटम देखे तो कॉपर, Au, सोडियम, जिंक, ये सभी जो है उसमें एटम होते हैं। लेकिन जब बात करें हम लोग H2Cl2, H2N2, H2N2, तो इन सब में कौन रहते हैं, मॉलिक्यूल रहता है। समझ रहे हो बात मेरी पूरी की पूरी, क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, कंपाउंड किसको बोलते हैं, चलो अब हम देखते हैं कंपाउंड किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से देखना थोड़ा। सो व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और atoms of different elements combine together in definite ratio, in definite ratio, तब वो मिलके क्या बना देंगे बच्चों, तब वो मिलके क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, जैसे जैसे आप समझ लो कि सपोज मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल है H2O, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ये तीनों जब मिलेंगे तभी यहाँ पे वाटर मिलेगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल का आप कंस्टिट्यूशन देखो, तो वाटर इज अ कंपाउंड। क्यों, वाटर के अंदर हर बार बीच में एक ऑक्सीजन, और दोनों साइड कौन आता है बच्चों, बीच में एक ऑक्सीजन आता है, और जो है वो दोनों साइड ऑक्सीजन, और यहाँ पे दोनों साइड हर बार हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे रेशियो कैसा है उनका, रेशियो कैसा रहेगा उसका बच्चों, बहुत ही फिक्स रेशियो रहेगा। आप समझ सकते हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है और एक कौन है बच्चों, ऑक्सीजन का एटम है। तब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो रेशियो कैसा रहेगा, फिक्स। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सेपरेट, वी कैन नॉट सेपरेट कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड।
जैसे हम लोग हैंड पिकिंग करते थे, तो पानी में से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना है, तो हम हैंड पिकिंग नहीं कर सकते। कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो फिक्स रेशियो में होता है, जैसे H2O है, CO2 है, अमोनिया है। अमोनिया कब बनेगा? जब एक एटम नाइट्रोजन और 3 एटम हाइड्रोजन के कंबाइन होंगे तब भी अमोनिया बनेगा बच्चों, और ये जो है वो फिक्स रेशियो में ही रहेगा। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों? ये सभी कैसे फॉर्म में रहेंगे? ये सभी के सभी फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही रहेंगे। ओके, इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड? यस और नो बच्चों? समझ रहे हो मेरी बात? फिर से एक बार, कंपाउंड है, उसमें दो और दो से ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, डिफाइनाइट रेशियो होता है, और उसका जो कंपोजिशन वो फिक्स है, ठीक है, और उनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बहुत कई बार से आपको समझाना चाहता था मैं, और वो बात ये है कि वो बात कुछ इस तरह से है, आप समझ लेना अच्छे से, कि सपोज कंपाउंड जब बनेगा, जब दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन होगा, okay, so at that time what will happen? This element will lose their property. ये जो एलिमेंट्स हो अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो है वो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, लाइक लीव कर देते हैं। सपोज हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, मीन्स वो हाइड्रोजन है, वो कंबसिबल है, वो बर्न हो सकता है। ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है, ये भाई कंबशन हो उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट कंबशन, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होके जब कंपाउंड बनाएंगे ना बच्चों, एट दैट टाइम मुझे ये बोलना पड़ेगा आपको कि ये जो दोनों हैं वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। बट वाटर इज यूज्ड, वाटर इज यूज्ड एज अ एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने के लिए एक काम में आता है। तो पहले ये बनता किस में से है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो दोनों फ्लेम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो आराम से क्या हो जाता है, ये बैठ जाते हैं। समझ रहे हो बात? तो वाटर इज यूज्ड एज अ एक्सटिंग्विशर। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू से, लेट मी रिवाइज दिस प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस क्या है वो मैं रिवाइज करना चाहूंगा। सो टू एंड और मोर कंपाउंड will combine together in a definite ratio, they will have a fixed composition. इसमें एलिमेंट भी होते हैं और कौन होते हैं, कंपाउंड। आप देख सकते हो कॉपर के एलिमेंट्स जो है वो सब सेम है। कंपाउंड है H2O, तो उसका जो कंस्टिट्यूशन है वो कैसा रहता है, कंपोजिशन कैसा रहता है, फिक्स्ड। ग्लूकोज है तो C6H12O6, आप ग्लूकोज कहीं से भी लाओ, उसका कंपोजिशन कैसा होता है, रेशियो कैसा होता है, फिक्स्ड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट, अब ब्रीफ में जाते हैं थोड़ा, तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो एलिमेंट है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ वन टाइप ऑफ एटम वेयर एलिमेंट कंटेन्स एटम और मॉलिक्यूल्स। कॉपर है तो उसके सभी एटम्स कैसे होते हैं, सेम टाइप। गोल्ड के सभी एटम्स कैसे होते हैं, सेम टाइप। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन देख सकते हो, H2 गैस में सब हाइड्रोजन एटम ही है, लेकिन वो H2 के फॉर्म में होते हैं। तो एलिमेंट है तो एटम के फॉर्म में भी हो सकता है और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है। चलो हम लोग कंपाउंड की बात करें बच्चों, कंपाउंड में क्या है, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स विल कंबाइन टुगेदर इन अ डिफाइनाइट रेशियो, मींस फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब कंबाइन होगा तब भी H2O मिलेगा। उसी तरह से CO2 में एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा। NH3 में एक नाइट्रोजन एटम तीन हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होगा। समझ रहे हो? we cannot separate that compound by physical method। हम फिजिकल मेथड से उस कंपोनेंट को हम लोग बच्चों सेपरेट नहीं कर सकते। सब उसको कहता है मुझे इस पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करना है, सो यू कांट डू इट। एंड लास्ट स्लाइड, एंड दैट वन इज दैट, जब भी कंपाउंड एक दूसरे, जब भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं तब वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लूज कर देते हैं।
जैसे मैं आपको अच्छे से बात बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो बर्न होता है विथ अ पॉप साउंड, ऑक्सीजन भी सपोर्ट करता है कंबशन को, लेकिन H2O जो है वो वाटर जो है वो एज एक्सटिंग्विशर यूज होता है। आपको होमवर्क में सिर्फ एक ही नोट में लिखना है। होमवर्क में वन टाइम रफ बुक में आप लिखो एक बार, एंड सेकंड टाइम एक बार आप फेयर बुक बनाओ, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आप क्या करो, उसके अंदर आपको जो है वो सभी कहाँ से लिखना है बच्चों, ट्राई करो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आप लिखने की ट्राई करो। सो एक बार आप यहाँ पे भी लिखोगे, मैंने जैसे बोर्ड पे लिखा है उस तरह से, तब भी आपका हो जाएगा। और एक तरह से आप फेयर बुक में लिखो जिससे आप टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन लिख सको। सो अब आप कंफ्यूज मत होना भी होमवर्क कैसे करना है, ओके। तो इस तरह से हम लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं about properties of matter. Okay, so just don't worry, we will see it. Okay, bye. Thank you very much.